Good morning, students. Lesson Conservation of Plants and Animals. I already taught you about biodiversity and importance of biodiversity. Now, we will talk about deforestation and its causes. A great variety of plants and animals exists on Earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. मेजर थ्रेट सबसे ज्यादा जो डर है हमारे सर्वाइवल के लिए वो जो खतरनाक है हमारे लिए दैट इज deforestation. We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है कि सारे के सारे फॉरेस्ट जो है उन्हें काट देना और उस लैंड को, उस जगह को, उस जमीन को किसी दूसरी पर्पस के लिए यूज करना, दैट इज डिफोरेस्टेशन. So today we will discuss about deforestation and loss of habitat. Under this topic, we have to study about deforestation. What are the causes of deforestation? So the first cause of deforestation, that is to build homes, right, factories, and roads and dams. So this is the first cause why we are doing deforestation. So that is the first cause, to build homes, factories, roads and dams. Second, for farming, as more food is needed, to feed the growing population, right? क्यों कर रहे हैं हम, पेड़ क्यों काट रहे हैं, हमें क्या ऐसा है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? पहली बात तो हमें रहने के लिए घर चाहिए, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ज्यादा जगह चाहिए, इसीलिए हम लोग फैक्ट्रीज लगाने के लिए, रोड बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं. सेकेंडली, अगर इतनी पॉपुलेशन होगी तो उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए. फॉर दैट वी आर व्हाट वी नीड, हमें खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा फसल उगानी पड़ेगी. सो फॉर फार्मिंग, एज क्यों, एज मोर फूड इज नीडेड टू फीड द ग्रोइंग population. So that is the second cause. Third cause, for mining. Yes, for mining of minerals such as coal, right, petroleum, we need coal and petroleum also, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो फिर हमें उसके लिए कोल, पेट्रोलियम, हमें ये चीजें चाहिए होंगी. For that we have to do a mining, and for mining we need a space, and for space what we are doing deforestation. So the fourth point, why we need this term deforestation, why हम क्यों काटना चाह रहे हैं, that is to get food. Yes, to get wood. किसके लिए यूज होगी, हम क्यों, हमें चाहिए लकड़ी, which is used in construction, right, which is used in construction
और किस लिए चाहिए? फॉर मेकिंग फर्नीचर। हमारे घरों में हम लोग अलग अलग तरह का सोफा इस्तेमाल करते हैं, चेयर्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड ऑल्सो एज फ्यूल। एंड एज फ्यूल, तो उसके लिए हमें लकड़ी चाहिए। और पेड़ को ऐसे ही तो हम यूज नहीं कर सकते, हमें काटना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फिफ्थ वन, दैट इज overgrazing. What is overgrazing? Overgrazing by cattle. ओवरग्रेजिंग, जब हम कोई भी हमारे पास जानवर हैं, वो ग्रास लैंड पे हम वो घास चरते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे हैं, भैंस है, गाय है, शीप है, हॉर्सेस हैं। सो क्या होता है कि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर द डिफॉरेस्टेशन, जो ओवरग्रेजिंग है। राइट, ओवरग्रेजिंग नॉट ओनली डिस्ट्रॉय ग्रासलैंड्स बट ऑल्सो ट्रीज इन फॉरेस्ट। किस तरह से? बिकॉज जैसे कि जैसे झुंड जो है वो जाते हैं, तो जो वेरी स्मॉल प्लांट्स और वी कैन से वेरी स्मॉल ट्रीज आर देयर, दे गेट ईटन और दे आर किल्ड बाय ट्रैम्पलिंग। ठीक है, वो क्या करते हैं, छोटे होने के कारण वो जब भागते हैं तो उनके जो पैर होते हैं वो उनके ऊपर पड़ते हैं, तो जिससे क्या होते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। तो जो लोअर लीव्स होते हैं, दे आर ईटन अप बाय द animals. So that is also one of the reason of deforestation. So overgrazing by cattle is also reason for deforestation. So this is the main reasons, these are main causes for deforestation कि हम deforestation हम पेड़ जो पौधे हैं वो क्यों काट रहे हैं. Let's revise the topic. Let's revise the causes of deforestation. Why we are saying that it is a threat to biodiversity. So for that, already we had done just now. Cutting down forest and using the land for other purposes is known as deforestation. And what are the causes of deforestation? Forests are cleared for accommodating expanding urban areas and for fulfilling their ever increasing requirements. Forests are destroyed to clear land for crops and cattle grazing. Trees are cut down to be used for firewood, for mining of minerals such as coal, petroleum, and ores, to build homes, factories, roads, and dams. Right? These are the causes. These are the causes of deforestation. Now, what are the consequences of deforestation? डिफॉरेस्टेशन अगर हम करते हैं, अगर हम पेड़ काटते हैं, तो उससे हमें क्या नुकसान है, हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, हमारे लिए क्या क्या चीजें खतरनाक हैं इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से. सो द फर्स्ट वन इज द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? मीन्स हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह से गर्म हो जाना. और वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्या चीज हो रही है? हम जब बेटा सांस लेते हैं, when we breathe, at that time we inhale oxygen and exhale CO2, right? And similarly, plants, they take CO2 and they give oxygen by the process of photosynthesis, right? We know that plants and trees consume carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis. अब ये काम कौन कर रहा है? ये प्लांट्स कर रहे हैं. लेकिन अगर हम प्लांट्स को या ट्रीज को इसी तरह से काटते जाएं और काटते जाएं और ट्रीज ही नहीं रहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर रहे हैं वो ट्रीज ना होने की वजह से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इट ट्रैप हीट रेज फ्रॉम द सन. जो सन से हीट रेज आ रही हैं वो CO2 जो है वो ट्रैप कर लेता है, CO2 अपने अंदर ले लेता है और उसके बाद एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो धीरे 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 बढ़ता है. This will lead to increase in temperature of earth and can cause global warming. This is called global warming. तो जो ये temperature continuously increase हो रहा है, that the reason for the increase in temperature is a global warming. और
अगर हम इसका बेस देख लें, अगर हम देखें कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है, that is because of deforestation. So this is the first consequence of deforestation. The next one is increase in droughts, right? Increase in drought. Drought क्या? सूखा. ज्यादातर जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है, मीन्स वहां पर पानी नहीं है. पानी न होने की वजह से जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, धरती फटी सी नजर आ रही है आपको. सो दैट इज कॉल्ड ड्रॉट. अब ये ड्रॉट का रीजन एक तरह से हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से. क्यों हुआ? क्योंकि ट्रीज नहीं है. रिमूवल ऑफ ट्री ऑल्सो डिस्टर्ब वाटर साइकिल. वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ट्रीज के अंदर वन प्रोसेस इज देयर व्हिच इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. वहां से वो अपने प्लांट्स में जो लीव्स हैं, वो लीव्स पानी जो है वहां से इवेपोरेट होकर बाहर जाता है. तो अल्टीमेटली ट्रीज अगर डिस्टर्ब करोगे तो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगा और उससे रेनफॉल कम होगा, जिससे कि सूखा पड़ जाएगा. क्योंकि रूट्स जो होती हैं ट्री की, वो वाटर को सक कर लेंगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस. क्योंकि रूट्स को, प्लांट्स को जो रूट्स है उनको तो चाहिए. द वाटर गोज टू द लीव्स. ड्यू टू सन दिस वाटर गेट इवेपोरेटेड एंड फॉर्म क्लाउड. समझ आ रही है बात? कि सबसे पहले रूट्स जो वो खींचती है धरती से, उसके बाद वो ऊपर जाता है. वहां पत्ते जो होते हैं वहां से इवेपोरेट होता है पानी. इवेपोरेट होकर ऊपर क्लाउड्स बनता है और द लेटर दे फॉल डाउन एज अ रेन. लेकिन अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगी, जिससे कि धीरे धीरे सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज द सेकंड कॉन्सिक्वेंस, ड्रॉट, which is also due to deforestation. Next is increase in pollution. Pollution level continuously increases all around the world. Why? Because we are using vehicles. We are industries. Lot of industries are there. From the industries, many poisonous gases they are expelled out. So that poisonous gases in the form of either CO2 or any oxides of nitrogen or carbon oxides are there. They increase the pollution level. So आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है. तो प्लांट और ट्री जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं. अगर प्लांट और ट्री नहीं है, वो CO2 को कंज्यूम नहीं करेंगे, अल्टीमेटली वो ऊपर जाएगा और वो पोल्यूशन को राइज करेगा. सिमिलरली अगर हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे या कार्बन के ऑक्साइड्स होंगे, उस समय भी क्या होगा? पोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा. पोल्यूशन के बढ़ने से व्हाट हैपन, sometimes acid rains is also there, right? So that is also a consequence of deforestation. So first one is global warming, second one is drought, and third one is pollution. See, lot of pollution is there, lot of industries, plastic and all this. All this causes pollution. Next one is animal and plant life affected, and desertification. This is very important term, desertification. Basically, deforestation causes an increase in soil erosion, right? Deforestation जो हम कर रहे हैं, जो पेड़ों को हम काट रहे हैं, इससे सॉइल इरोजन हो रहा है. सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? जब तेज आंधियां आती हैं या बहुत प्रेशर से पानी आता है, तो धरती की जो ऊपर वाली लेयर है उसको अपने साथ बहा के ले जाता है, इरोड कर देता है. So as the topsoil get eroded, the lower hard and rocky soil with less humus gets exposed. तो नीचे वाली जो धरती है वो बहुत हार्ड होती है, वो इतनी फर्टाइल भी नहीं होती है, वेरी लेस फर्टाइल. तो जैसे जैसे ये सॉइल इरोजन होता जाएगा ओवर टाइम, कंटिन्यूअसली ज्यादा सॉइल इरोजन होगा, देन सारा का सारा लैंड जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. So the basically due to soil erosion, it convert into desert, and that is called desertification, right? Roots of trees bind soil together. Due to less trees, there will be more soil erosion. Fertile soil is eroded by wind and water. Hence, fertile lands will soon turn into deserts. That is desertification. This is a very important term. Next one is animal and plant life is affected. Yes, of course. अगर आप प्लांट्स
काट रहे हैं, ट्रीज काट रहे हैं, तो वो बर्ड्स को भी नुकसान होगा, वो एनिमल्स को भी नुकसान होगा, वो ह्यूमन बींग्स को भी बहुत बड़ा नुकसान है। नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इज डिस्टर्ब्ड। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, इवन एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मींस वो धरती पे कहीं पाए नहीं जा रहे, कहीं मिल नहीं रहे हैं, वो मर चुके हैं कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स। सो दैट इज आल्सो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फ्लडिंग ऑफ रिवर्स। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब ट्रीज नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फूड और फॉरेस्ट जो है, जो फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजें, वो नहीं मिलेंगी हमें। सो ट्रीज एंड प्लांट्स इन फॉरेस्ट प्रोवाइड अस वैरायटी ऑफ फूड टू ईट, एग्जांपल फ्रूट्स एंड हनी एटसेट्रा। Also woods obtained from trees used to make furniture and paper, etc. Many medicines are also prepared from plants and trees. So cutting of tree will lead to shortage of forest product. So ये जो forest का product है बेटा, ये हमें नहीं मिलेगा। जो भी चीजें हमें forest से मिल रही थी, क्योंकि plant नहीं है, क्योंकि tree नहीं है, हमारे पास क्या आ जाएगी, उनकी हमारी shortage आ जाएगी। फ्लडिंग ऑफ रिवर्स क्या है, जब बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है तो रूट्स जो ट्री के हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ट्रीज नहीं है तो सॉइल को होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो पानी है वो भर जाएगा। In case of shortage of tree, soil will not be able to absorb water. This water will flow into river, causing floods, leading to loss of life and properties. So these all are the consequences of deforestation, right? It causes shortage of product we get from forests. So these are the main causes. These are the main consequences of deforestation. Now revise all the consequences and causes of deforestation in this video clip. This is for your revision. These plants are present in abundance in nature. Why is there a threat to their survival? Yeah, they face threat due to many reasons. In the present scenario, these plants are being cut down to fulfill the needs of the increasing population. Felling of trees in order to satisfy the demand of urbanization and industrialization is called deforestation. Procuring land for cultivation. Forests are cleared and the land is converted into agricultural land for increasing the crop yield and production. Building houses and factories. As the population has increased, the need for houses and factories for manufacturing material for human consumption also increased, and the ultimate result is the clearing of forests. Making furniture or using wood as fuel. The trees provide us with wood that is used for making furniture and other products.